Assalamualaikum everyone. Hi again. I'm Saeed Mustaba, your quantitative aptitude faculty. Yesterday I started with ratios and proportions. मैंने कल start किया था and it's very important that whosoever is going from the basics should watch lecture 1. ठीक है, आपको पसंद आया होगा इंशाल्लाह रहमान. That's what I hope for. Today I will continue with the lecture number 2. It's again the basics part of it and then we will take the word problems. We'll go from basics to the topmost problem and I assure you that you will find no problem at all in solving the questions, right? I told you that ratios and proportions बस इतना नहीं है that it is a topic. It is basically a part and parcel of quantitative aptitude. If you don't know how to solve it, how to deal with the questions, right? How to deal with ratios and proportions, what they exactly are, you will find problem in quantitative aptitude because our aim is to reduce time and reduce the paper use in case of quantitative aptitude. कल मैंने क्या किया था? A very brief and quick revision. I said that if you have two quantities, for example A and B, right? And I say that the ratio between these two quantities 2:1, it simply signifies that this does not mean that A is equivalent to 2 or B is equivalent to 1. It actually tells you that इनके बीच में comparison क्या है, ये A के दो पार्ट और B का एक पार्ट. प्लीज वॉच दैट वीडियो. ऑलराइट, उसके बाद मैंने क्या बताया, और जो whenever you compare the two quantities that is A and B, it can be anything, right? जिसके हिसाब से हम उनको कंपेयर कर रहे हैं. इफ आई सेड टू पार्ट्स, आई सेड टू पार्ट्स, अगर ए के दो पार्ट है और इसका भी पार्ट वन पार्ट है, ये पार्ट जो होगा दिस विल बी सेम. अब आप कुछ भी ले सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी रुपीज, इट कैन बी एनीथिंग, बट जो भी आप कंपेयर कर रहे हैं, इफ आई सेड टू पार्ट्स, that two parts, part has to be same. So that is very very important. Then I said that you can have more than two quantities, you can have four quantities, you can have three quantities. We started with this question. I said that let us suppose in a question this is what you have to find out. A is to B is to C is to be found out, okay? And also A is to C is to be found out. All right, this is what I said. And I said that if you have been given that a ratio between A and B is equivalent to 2:3, कितना दिया इनका रेशियो? 2:3. और ये भी बताया गया दैट B is to C, B is to C is given as 4:7. What you have to do? You have to calculate what is A is to B is to C, and you also have to calculate what is A is to C. How will you deal with this kind of a question? To be very fast, I told you, I gave you two methods, right? पहले हम बेसिक वाला बताए कि मैंने क्या बताया, ऐसे लिखे A is to B is to C, right? अब A is to B कितना दिया है? 2:3 दिया था. उसके बाद B is to C दिया था आपका 4:7. ठीक है, 4:7. This is what was given to you. I said that, you see, what does this signify? That is very important, right? It signifies that when A is having two parts, for example A and B and C are three things, right, which are forming the complete thing. यानी A, B और C से ही एक चीज बन रही है, ठीक है? और मैं A, B और C के contributions को कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है? तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर A के दो पार्ट है, B के कितने पार्ट है? B के तीन पार्ट है. कल एग्जाम्पल भी दी थी, आपको समझ आ जाएगा. गो एंड वॉच दैट वीडियो प्लीज. ओके, तो B के तीन पार्ट है, लेकिन उसके बाद मैं क्या कह रहा हूं, मैंने इनके बीच में कंपैरिजन नहीं बताया A और C कितना होगा तब, लेकिन मैंने B और C के बारे में बताया. मैंने बताया कि B अगर 4 पार्ट है तो C आपके कितने हैं? 7 पार्ट. अब तीनों एक ही चीज बना रहे हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इस B को कॉमन बना लूं. अगर मैं इस B को कॉमन बनाऊंगा, सो व्हाट आई हैव टू डू, द बेस्ट वे टू डू इज दैट टेक द एलसीएम. एलसीएम कितना आएगा? 4 और 3 का. हम ऐसा मल्टीपल लेते हैं, ठीक है, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे. आप उससे बड़ा भी ले सकते हैं, वो मसला नहीं है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन जो है वो बड़ी हो जाएगी, 2 फोल्ड हो जाएगी, 3 फोल्ड्स हो जाएगी. तो एलसीएम अगर 3 और 4 का लेके 12. अब 12 ऐसा नंबर है which is actually that you can easily divide by 3 and you can also divide it by 4, right? तो मैं इसको क्या करूंगा, इस पूरे को, ये B वाला जो पार्ट है, इसको मैं 12 बनाने की कोशिश करूंगा. तो for that what I have to do, I will multiply this whole ratio with 4, क्योंकि 4 into 3 is 12, and I will multiply this whole ratio with 3 because 4 into 3 is 12. तो B 12 बन जाएगा, correct? And I also said that it is very important if you are multiplying by some number, किसी रेशियो को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको दोनों साइड से करना पड़ेगा जो भी इसके साथ प्रेजेंट है. Why? Because you cannot change the value, you cannot change the ratio what was originally given to you. तो ये कितना बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा 8. A बन गया आपका 8, B एंड C देख लीजिए. B कितना बन गया आपका? 12, ठीक है. और वो कितना बन जाएगा? ये देखिए, ये वाला B तो उतना बन गया, ठीक है. यहां पे नीचे देखिए, ये 12, 4 into 3 is 12, एंड व्हाट इज 7 into 3? दैट इज 21. यहां पे मैं C लिख रहा हूं, ठीक है.
दे देखिए ऐसे है। अब देखिए b तो कॉमन है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब b के आपके 12 पार्ट्स हैं तब आपका a का 8 पार्ट है और आपका c का कितना है 21 पार्ट्स है। सो सिंपली a is to b is to c कैन बी रिटन एज, जब b के 12 a का 8 और उसके कितने 21 पार्ट। अगर आपको पूछा गया a is to c के बीच में रिलेशन बताए, आप सीधे बता सकते हैं दैट इट इज बेसिकली 8 is to 21, यानी when you have 21 parts of a, when you have 8 parts of a, you have 21 parts of c. All right, this is what I said last time as well. इसके बाद मैंने आपको क्विकली बताया था that how you can do it in a short way. You don't have this much of time that you will be doing it in this fashion, but it's very important to know exactly what basically has happened and how I have come to this conclusion. I said that this is what was given to you. I think that ये कितना दिया था, ये 4 और 7 दिया था ना, C और इसके बीच में कितना दिया था, B is to C was given as 4 is to 7, करेक्ट, यही दिया था। तो मैंने क्या किया, मैं बनाऊंगा ऐसे, A is to B is to C, करेक्ट, ये दिया है आपको 2 is to 3 एंड B is to C का रिलेशन कितना दिया है, दैट इज 4 is to 7। अब देखिए यहां पे देख सकते हैं आप, this is open, this is open. What is in its vicinity? 3, take 3 here. What is in its vicinity? 4, take 4 here. Multiply these, what you will get? You will get 8. Multiply this, you will get, इसको multiply कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना बन गया 12, इसको multiply करें कितना बन गया 21, आपका रिजल्ट निकल गया 8 is to 12 is to 21. This how you do it, okay? All right, let's see another one now. All right, if a question is like this, a is to b, a is 1 by 2, b is 5 by 4, what do you do in this? If this is how it is given, remember one thing, we will never try to keep it in p by q form. हम हमेशा इसको whole form में लाएंगे, ठीक है। उसको करने का तरीका क्या है देख लीजिए। ये जो आप डिनोमिनेटर में देख रहे हैं, एलसीएम देख रहे हैं, डू यू अंडरस्टैंड? ये ये डिनोमिनेटर में 2 नंबर देख रहे हैं, 2 and 4, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 2 और 4 का, दैट इज 4। एलसीएम इसका कितना आ गया 4। अब मैं क्या करता हूं, इस 4 को मल्टीप्लाई करूंगा दोनों से, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया 2 1s are 2 2s are and this cancels out. So basically it also meant that मुझे रेशियो कितना था 2 is to 5 था। अब आप बताइए कि सर ये क्या कर दिया आपने। सी आई टोल्ड यू दैट ये 4 तो मैंने एक नंबर ले लिया। क्यों ले लिया नंबर? बिकॉज आई नो yesterday I told you that if I multiply by the same number from this side and this side it does not change the ratio। इसीलिए मैंने क्या किया, मुझे ऐसा नंबर चूज करना था, ऐसा नंबर चूज करना था सच दैट इसमें भी जब इससे मल्टीप्लाई करूं, इस फैक्टर b से मल्टीप्लाई कर दूं और इससे भी मल्टीप्लाई करूं, ये मुझे क्या देना चाहिए, ये मुझे एक होल आंसर देना चाहिए p by q में आंसर। आई मीन टू से आपका रैशनल पार्ट्स में आपका इसमें न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में आंसर नहीं आना चाहिए। इट बिकम्स इजी, ये गलत नहीं है, इट इज स्टिल द फाइन, राइट। 1/2 is to 5/4, ऑलराइट। इट सिंपली मींस दैट व्हेन यू हैव 2 पार्ट्स ऑफ दिस यू हैव 5 पार्ट्स ऑफ b, इट इज वन एंड द सेम थिंग। अच्छा, अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम आपने लीस्ट कॉमन फैक्टर ले लिया। अगर आपने बताया सर ऐसे नहीं हो सकता, एक काम करते, आपने a is to b जो बताया, आपने बोला when this is 1/2 and this is how much 5/4, right? Why did you only multiply it by 4? I could have multiplied it by 16. I said okay, fine. You could have multiplied it by 16 क्योंकि 16 भी ऐसा नंबर है कि सब कट जाएगा। देखिए 4 4s are राइट, और यहां से भी आप देखेंगे ये 8 बन गया, तो कितना रेशियो आ गया 8 is to 5 into 4 is 20। बट दिस इज नॉट अ रेशियो, यू कैन फर्दर स्लाइस इट डाउन बाय सेइंग कि इसको 4 से हो जाएगा 4 2s are and 4 5s are, so again the ratio is 2 is to 5। अब मैंने क्या करा, आप देख सकते हैं दैट एक स्टेप मेरा कम हो गया था। अगर आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो आप आराम से कर सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा दैट व्हाई वी टेक दिस एलसीएम। आई जस्ट वांट टू मेक माय एनालिसिस वेरी इजी, सो व्हेनेवर यू विल हैव अ रेशियो इन दिस फॉर्म, ट्राई टू जस्ट फिनिश इट ऑफ इन दैट स्टाइल, राइट। अगर ऐसे दिया हो 3.2 is to 5, what will you do in this case? अब इसको 32/10 नहीं लिख लीजिएगा, ये 3.2 है। Why don't I multiply it by 10 from this side? Why don't I multiply it by 10 from this side? देखिए इससे इजी हो गया, मुझे पता है इसे कम भी कर सकते थे। डू यू अंडरस्टैंड? मैं 5 से भी मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर सकता था, बट आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो कितना आ गया 32 is to 50। What I am trying to say is in this case is simply that what you try to do is try to make your analysis, try to make your things very simple, right? उसका तरीका यही है। याद रखिएगा when you multiply by the same number, जब भी आपका रेशियो होगा,
अगर आपने एक जो रेशियो का पार्ट होगा जिसे आप कंपेयर करें, एक क्वांटिटी को आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, आपको जितनी भी क्वांटिटीज उसके साथ कंपैरिजन में है उनको भी मल्टीप्लाई करना चाहिए, तभी जाके आपका उनका रिलेशन सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कल का वीडियो देखें, वो मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। ऑलराइट, सो दिस वाज अनदर एग्जांपल। नाउ लेट अस टेक when we talk about 4 ones, right? अब अगर आपको 4 दिए हो, जरूरी नहीं है आपके पास सिर्फ 3 क्वांटिटीज है, you can have 4 quantities as well. We will see both the methods in that case as well. All right? See now, if you have 4 quantities, for example, you have A, B, C, D. You are comparing it, है ना? आप क्या कीजिए ना, आप इसको एग्जाम्पल ले सकते हैं। 4 लोग हैं and they have formed a company and everybody is investing money. Do you understand? अब मनी मुझे पता नहीं है कितना दिया है, बट आई एम सेइंग दैट ये ना ऐसे इन्वेस्ट किया, ये मेरी कंपनी है, ठीक है, दिस इज माय कंपनी। Alright, this for everyone. That is why I'm taking one more lecture. I thought that for those people who are not, you can say, accustomed to mathematics, it's important that I give one extra lecture on this one. Alright, so it's beneficial for you if you will try to just see it. And जब भी आप देखें lecture, तो बिल्कुल ना उस टाइम पे देखें जब आपके पास टाइम भी हो। आपके पास टाइम नहीं होना के सवाल ही नहीं पैदा होता। आप क्या कर रहे हैं, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो यू हैव टू टेक टाइम, यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर थिंग्स। सी नाउ, ए बी सी एंड डी, मतलब ये कंपनी है, अब कंपनी को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो मैंने क्या किया ना, ए ने भी अपना पैसा डाल दिया, बी ने भी डाल दिया, सी ने भी डाल दिया और डी ने भी डाल दिया पैसा। यू अंडरस्टैंड? सी ने भी डाल दिया और डी ने भी, 4 लोग हैं। अब टोटल जो पैसा है ना वो ए बी सी डी का बना हुआ है, ठीक है, ये जो कंपनी में पैसा है वो ए बी सी डी का है। अब मैं क्या कह रहा हूं, इनके बीच में कंपैरिजन बता रहा हूं मैं, ठीक है, मैं आई हैव टू एक्चुअली सी द कंपैरिजन। अब मुझे क्या बोला गया है, मुझे बताया गया है जी आपको ना ये निकालना है इनके बीच में एक साथ कंपैरिजन, इसने कितना डाला, इसने कितना डाला, इसने कितना डाला और इसने कितना डाला। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो मुझे क्या दिया गया है, मुझे बताया गया है दैट फॉर एग्जाम्पल A is to B has been given to me and it is given to me as 3 is to 4. All right, it is given to me as 3 is to 4. B is to C भी दिया गया है, वो कितना दिया गया है, that is 5 is to 7. All right, that is 5 is to 7. एंड C और D के बीच में रिलेशन दी गई है, एंड हाउ मच इज दैट, दैट इज 8 is to 9. What you have to find out, this is what you have to find out, and also you have to find out what is A is to D. आपको जो भी बाकी लेना होगा वो आप निकाल सकते हैं। अब देखिए रिलेशन कैसे दिया है। Simply the relation has been given between the 2 people A and B, then again 2 people B and C, then again 2 people C and D. सबका एक साथ नहीं दिया है। That is what your job is, that is what you have to find out. तो A और B का क्या बताया, when if A contributes 3 parts, B contributes 4 parts, but then C also is there, right? और C की कैसे रिलेशन दी है, if B is contributing 5 parts, C is contributing 7 parts. Do you understand? 2 के बीच में रिलेशन। If then C is contributing 8 parts, D is contributing 9 parts. लेकिन हमें तो इन्होंने तो सबने एक साथ कंट्रीब्यूट किया है, तो उठ के बना दीजिए ना, क्या मसला है। देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको, जस्ट चेक इट आउट नाउ। यहां पे चलते हैं, देख लीजिए, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा A is to B is to C। पहले एक लंबा सा मेथड ही देख लो, ठीक है, उसके बाद शॉर्ट इसका भी कर लेते हैं, ठीक है, बाद में करना वही है। A is to B के बीच में कितना है रिलेशन, 3 is to 4 का रिलेशन। B is to C के बीच में कौन सा रिलेशन, दैट इज 5 is to 7 रिलेशन। ऑलराइट, एंड C is to D के बीच में रिलेशन क्या है, 8 is to 9 का रिलेशन। अब एक तरीका है, जरा मैं पहले 3 का देख लूं, मैं 3 की रिलेशन देख लूं, लास्ट पे मैं D वाले के साथ कंपेयर कर सकता हूं। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो देख लीजिए, यहां पे चलते हैं, इसको रब कर लेता हूं मैं। Just have a look here. 3 is to 4, 5 is to 7, 8 is to 9. I have to find the relation between all of them. All right. So how will I do that? मैं ना 3 का ले रहा हूं। 3 का कैसे लूंगा, देख लीजिए, अभी मैंने बताया। देखो ये जो है B और D, B, यहां पे बोल रहा है जब B के 4 पार्ट थे, A के 3 पार्ट थे, जब B के 5 पार्ट थे, C के कितने पार्ट थे, 7 पार्ट थे। डू अंडरस्टैंड? तो पहले मुझे ये बताइए, B तो कॉमन है इनमें, तो इसको कॉमन बना लो ना, क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे। इसका एलसीएम कितना,
20 20 होगा इसका एलसीएम। 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 20 होता है। तो इसको 20 बनाओ बी को। तो 20 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, लेकिन सिर्फ इसको 5 से नहीं करूंगा मल्टीप्लाई, इसको भी, क्योंकि रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, बार बार बता रहा हूं। और नीचे वाले को क्या करूं मैं? किससे मल्टीप्लाई करूं? ये करना है ना, 20 बनाना है, इसको बनाना है 20, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ गई रिलेशन? क्या आ गई रिलेशन इसके? यानी अगर आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहां देखिए ए इज टू, एक बार ये समझ गए, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सी इज टू डी, ठीक है, यही है। तो अगर ए के बीच में कितना, ये 3:4 था, इंटू 5 कर रहा हूं ना मैं, ठीक है, तो ये बन गया आपका 15, ये बन गया आपका 20। यहां देखिए 4 इंटू 5 इज 20, क्योंकि कॉमन बनाया था मैंने इसको। 4 इंटू 7 इज हाउ मच? 28। अभी डी का काम नहीं आया, ठीक है, अभी डी नहीं आया बीच में। ऑलराइट, तो इससे मुझे क्या पता चल गया? ए बी और सी के बीच में कैसा रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन? यू कैन से ए बी और सी के बीच में भाई ऐसा रिलेशन है। अगर ए बी सी और डी आपके पास प्रेजेंट है, ए अगर 15 है, आई मीन टू से जब बी आपका 20 था तब ए आपका 15 है, ये देख लो, जब बी आपका 20 था, और उसी टाइम पे सी कितने हैं? 28। इट मींस व्हेन यू हैव 20 पार्ट्स ऑफ बी, you have contributed, A has contributed 15 parts and C has contributed 28 parts. Is it clear or not? If it is clear, let's move forward. But there is one more thing, and that is this 8:9 is also given to me. अब देखिए यहां पे मैं इसको एक काम करता हूं, इसको मैं 7:9 लेता हूं, जल्दी हो जाएगा। 7:9 ले लिया, तो मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे 7:9 दिया हुआ है, ये मुझे दिया है 7:9। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? यानी अब तो सी और डी की भी रिलेशन आ गई ना, 7:9 है। अब देखिए चारों ने कंट्रीब्यूट करा था, तो इसको भी कॉमन ग्राउंड्स पे ला लेते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? इसको भी लाते हैं, तो इसमें क्या करेंगे? इनका एलसीएम निकालेंगे। कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? दैट इज 28, इजंट इट? 28 होगा या नहीं होगा एलसीएम? एलसीएम विल बी 28। यानी एक काम करो, इसको भी 28 बनाओ, इसको भी 28 बनाओ। ये तो बेचारा पहले से बना ही हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 करना पड़ेगा। अब यहां पे मल्टीप्लाई बाय 1 है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन करना मुझे तीनों को था, because right now I am taking all these three into consideration. I cannot change their ratios, right? If I am multiplying this one, I have to multiply this one, I have to multiply this one as well. So it is multiply by 1. और इसको किससे करना पड़ेगा? इस पूरे को इसको 4 से करना पड़ेगा। So what will be the ratio? You can easily see 15, 20, ये बन गया आपका 28, 4 into 7 ये 28, और ये कितना बन गया? 4 into 9 is 36। तो आपका रेशियो जो बन गया A is to B is to C is to D, ये रेशियो कितना बन गया? यानी अगर ये 20 था, ये आपका 15 है, ये आपका कितना है? 28 है, और ये आपका कितना है? 36 है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द रेशियो। अब आपको यही पूछा था तो आपने निकाल दिया। अगर आपको पूछा होता A is to D बता दो, आप क्या करोगे? यू विल सिंपली से, जब इसके 15 पार्ट थे, इसके 36 पार्ट होते हैं, तो आप बोलोगे 15 is to 36। अंडरस्टूड? आपको ए और सी के बीच में पूछा गया है, अगर ए और सी के बीच में पूछा गया था तो आप बोलोगे जब इसके 15 पार्ट थे, इसके 28 पार्ट है, सो इट विल बी 15 into 28। अंडरस्टूड और नॉट? राइट? सो दिस इज अ लेंथियर मेथड, वी डोंट गेट इनटू दैट, बट understanding of the concept is very easy. It might take me 15 minutes, 20 minutes more to explain, but it's very, very, very important that you understand it. If you really like this video, please, 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 and please, motivation is very important. I'll be motivated with your overwhelming response, and obviously if I am of any benefit, there is nobody more blessed than me then. Okay, so let's carry on. आगे चलते हैं, देख लीजिए, इसी चीज को मैं ऐसे करता हूं। Now you have to find out the same thing. I will do it with the short method, that is like this. Alright, अब देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। Just have a look. यहाँ पे A और B के बीच में जो आपको रिलेशन दिया था, that was 3:4. B और C के बीच में जो रिलेशन दिया था, that was 5:7. और C और D के बीच में रिलेशन दिया था, and that was how much? That was 7:9. I had changed this, isn't it? पहले 8 लिखा था, अब 7 लिख लिया था, just for ease. आप 8 भी लिख लीजिए तब भी निकल जाएगा। अच्छा, कितने यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स बराबर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये खाली है, ये पोर्शन भी खाली है, ये पोर्शन भी खाली है, ये पोर्शन भी खाली है। दिस इज ओपन, दिस इज ओपन। नाउ आई टोल्ड यू yesterday how you do that. Fill that with your neighbors. कैसे? 4 है यहाँ पे, तो 4 का 4 यहां पे कौन आ जाएगा? यहां पे अगर 4 आ गया, यहां पे भी 4 आएगा। यहां पे 7 है, यहां पे भी 7 आ जाएगा। यहां पे 5 है, यहां पे 5 आ जाएगा। यहां पे 7 है, तो यहां पे भी 7 और यहां पे भी 7 आ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करें। 3 into 5 is 15, 15 into 7 is 105, 4 into 5 is 20, 27 is 140। अंडरस्टूड? यहां पे देखिए 4 into 7 is 28, 28 into 7 is
28 into 7, 28 into 7 is how much? 196, right? यहां पे देखिए, this is 28, 28 into 9 is how much? 28 into 9 is 180, 252. अंडरस्टूड? ये देख लीजिए, ये आपका रेशियो आ गया, ठीक है, ये इनकी कंट्रीब्यूशन आ गई। आप 7 से इसको क्या कर सकते हैं, यू कैन इजीली टेक अ फैक्टर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप इसको और छोटा करना चाहते हैं आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे देखिए, 7 कितने से हो जाएगा, 7 15 जार, 7 20 जार, 7 ओके, इसको किससे हो जाएगा, 7 28 जार एंड 7 29 जार। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट, आई एम 7 36 जार। Alright, is it clear? Just see, you got the same result, 15, 20, 28, 36. Is it clear or not? ठीक है, so this becomes very easy. अगर आपको ये लग रहा है कि ये भी लंबा हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम सीख जाएंगे, इसको भी छोटा कर लेंगे. Do you understand? So this is how you find a relation between all of these. तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसके मतलब पे चलते हैं. इसका मतलब ये हुआ, जो आपने रेशियो निकाला, आपने रिलेशन तो अलग अलग दे दी थी, दो दो के बीच में दे दी, लेकिन आपने ना कंपनी में पूरे 3-4 की रिलेशन निकाल दी. कैसे निकाली, आपने बोला ए ना कितने कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितने पार्ट्स 15, बी कितने पार्ट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है 20, सी कितने पार्ट्स कर रहा है 28 पार्ट्स, और डी कितने कर रहा है 36 पार्ट्स. अब ये याद रखिए, ये पार्ट्स है, ठीक है, पार्ट्स आर ऑल सेम. डू यू अंडरस्टैंड? यानी पार्ट का वैल्यू सेम है, ये 15 पार्ट्स कर रहा है, ये 20 पार्ट्स कर रहा है, ये 28 कर रहा है और वो 36 कर रहा है. तो टोटल जो कंट्रीब्यूशन हुआ होगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन में वो कितने पार्ट्स होगा, दैट इज 35 प्लस 28 इज 63 प्लस 36 इज हाउ मच, 99. यानी 99 पार्ट्स जो है वो डाले गए थे. डू यू अंडरस्टैंड? अगर मैं बताऊं टोटल, अब देखिए कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं. आपने खुद से कर लिया, आपने इनका कंट्रीब्यूशन देख लिया. अब अगर एक्चुअल वैल्यू पता हो दैट हाउ मच ए कंट्रीब्यूटेड, हाउ मच बी कंट्रीब्यूटेड, सो देयर इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड. फॉर एग्जांपल, इफ समबडी टोल्ड मी दैट टोटल कंट्रीब्यूशन, right, total contribution in the company by these 4 members was how much, was, let us suppose 9,900. गरीब कंपनी, ठीक है, 9,900, ठीक है. तो what will I do? I will say no problem, I can find out the contribution of each and every one. I will say that according to my calculations this is what the ratio is, and मेरी contribution तो 99 parts की आ गई ना, 99 parts, right? And that has been given to me that वो किसके बराबर है, 9900 के बराबर है. ठीक है, तो मुझे बताइए जी, एक पार्ट किसके बराबर होगा. I will say one part will be equivalent to 99 जी 100 sir. Do you understand? So one part is equivalent to 100. Is it clear? One part is equivalent to 100. अब अगर मुझे कोई बताए तो एक ही कंट्रीब्यूशन बताओ, एक ही कंट्रीब्यूशन कितनी थी, 15 पार्ट थी, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना, एक पार्ट का वैल्यू 100, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया 1500. इसने कितना किया होगा, बी ने 2000, इसने कितना किया होगा 2800. सबको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना 3600. अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे ये 9900 ही आएगा. डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो इज. सो रेशियो आर एक्चुअली टेलिंग यू द रिलेशन बिटवीन the contributors, relation between everything that you will see. We will gradually take the word problems and you will 110% you will understand that, right? It was just a basic so that you get accustomed with what ratios and proportions are. I have not touched the proportions yet, we will come to that as well. Okay, ठीक है, चलते हैं आगे and I will talk about जो recently पूछे जाते हैं क्वेश्चंस. पहले मैं उन पे टच करता हूं, ठीक है. डायरेक्टली पूछे जाते हैं तो उसके लिए हमें 3 और कंसेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, जिसको हम मीन प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स कम टू दैट. सो व्हाट आई हैव नाउ इज सिंपली, ऑलराइट, फर्स्ट जो कंसेप्ट आता है, मैं 3 चीजें बताऊंगा. एक हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल. क्या बोलते हैं? मीन प्रोपोर्शनल. व्हाट इज मीन प्रोपोर्शनल? दूसरा कंसेप्ट जो होता है दैट इज व्हाट यू कॉल एज, जैसे आप बताएंगे, यू कैन से 3 प्रोपोर्शनल, ठीक है, सेकंड प्रोपोर्शनल. आई विल कम टू फर्स्ट. पहले मैं क्या करता हूं, मैं मीन प्रोपोर्शनल कर लेता हूं, ठीक है. मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, आपको 2 नंबर दिए गए हैं, ए और बी. मीन प्रोपोर्शनल पता है क्या होता है? वी रिप्रेजेंट मीन प्रोपोर्शनल बाय एक्स. किसे रिप्रेजेंट किया मैंने? आई रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, एंड दिस एक्स इज लाइक दिस. यू सी, आई विल राइट इट एंड आई विल एक्सप्लेन दैट व्हाट इज एग्जैक्टली मीन्स. आई विल से दैट ए इज टू, ठीक है, एक्स शुड बी इक्वलेंट टू, एक्स इज टू
b. What does this mean now? अब इसका मतलब होता है proportionality, इसका मतलब होता है equality. Do you understand? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a is to x की रिलेशन में a by x भी लिख सकता हूं और इसकी रिलेशन में x by b भी लिख सकता हूं. And I am writing an equality in between. Isn't that clear? So what does this mean? This means why don't you find out a number x? Which when? Right? Which when? For example, you have to find the number x. Do you understand? When you put that in the denominator, or you say that if you divide a by x, that gives you some number, and the same number has to be, right, a b has to be divided, b has to divide this x, right, and they have to give you the same result. Do you understand? यानी एक x ढूंढ लो जो क्या है, जो इसका डिवाइड अगर आप a से करेंगे और उसी x को, ठीक है, अगर आप b से डिवाइड करेंगे, दोनों क्या देंगे, सेम रिजल्ट दे देंगे. उस x को ढूंढना ही, इसी को आप क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, मीन proportional. Understood or not? Or should I repeat? This means a, what is this number x, such that if I divide a by x, right, and if I divide x by b, right, they should give me an equal answer. What is this x? Find out this x. What I will do, first of all, I will say that okay, ये है, ये मुझे x ढूंढना है, a by x is equivalent to x by b. All right, so why don't you cross multiply? You will simply see that x square is equivalent to ab and x is equivalent to under root of ab. अब आप देखिए, दिस इज व्हाट यू कॉल एज मीन प्रोपोर्शन. यानी अगर आपको पूछा मीन प्रोपोर्शन निकाले, आप सीधे बोलेंगे x शुड बी इक्वल टू a एंड b. a एंड b वेयर द नंबर्स जो आपको नोन नंबर्स थे. ठीक है, आप एग्जांपल भी ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल a वाज, लेट अस सपोज, टेक इट एनी एग्जांपल दैट यू विल टेक. फॉर एग्जांपल a वाज, लेट्स टेक इट गुड वन. ओके, कितना लेते हैं, इसका मान लेते हैं 13 मान लेते हैं. ठीक है, इसका मैं 13 मान लेता हूं. ठीक है, वो सॉल्व बाद में कर लीजिएगा. a इज 13, ठीक है, एंड b जो है आपका दैट इज 14. इज इट क्लियर? a is 13 and b is 14. All right, so what I am simply saying is that what is mean proportional of a and b? It simply means that a by x, ठीक है, इस नंबर x को ढूंढिए, x ही मुझे फाइंड करना है, x रिप्रेजेंट्स मीन प्रोपोर्शन, शुड बी इक्वल टू x by b, or in other words a is to x should be equivalent to x is to b. किसके बराबर हमने अभी देखा, I'll simply say, ये हमने देखा x स्क्वायर किसके बराबर आता है, a b के बराबर आता है, या x किसके बराबर आता है, अंडर रूट a b के बराबर आता है. तो मुझे बताइए a कितना है आपका, a आपका 13 है, और आपका ये कितना है, ये कितना दिया था मैंने, 14 दिया था. ठीक है, so this is 14. So this will be your answer. Your job to find out. Is it clear? By the way, how much is this equivalent to? 182. All right. ये कैसे करता हूँ मैं? You once your calculations will become, either you have to learn तो करना पड़ेगा आपको टेबल, आपको तो स्क्वायर क्यूब सब कुछ याद करने पड़ेगा. That's very important. इनफैक्ट उसका चिट्ठा बना दो और वो हर दिन ना चेप दो. आप जितना याद जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा है आपके लिए. अगर वैसे भी करना चाहो, देखो मैंने क्या किया, I do it in head. Right, 13 into 14. I break it into 2. I say that 13 into 10 plus 4. 13 into 10 is 130 plus 4. So 13 into 4 is 52. 130 plus 52 is 182. That's how I find it. So it is under root of 182. Understood? तो this is your mean proportion. यानी इसका मतलब है अगर आपका x यहाँ पे under root of 182 होगा, that will be exactly, these two terms will be equal. इसी को हम बोलते हैं mean proportion. Do you understand? Alright, this was about mean proportion. That was x is equivalent to under root of ab, where a and b were two quantities that were known to you, and you can easily find out what is the mean proportion between them. Explain it properly. Third proportion. Third proportion is this: a is to b is equivalent to b is to x. I am again representing my third proportionality by x. यानी यहाँ पे आपका क्या है ना, आपको एक तीसरा proportional निकालना है. ठीक है, वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए a is to b means a by b has to be equivalent to किसके, ये जो दूसरा वर्ड है क्या है, 2 है, b है ना, b दिया हुआ है आपको, डिवाइडेड बाय x. मैं क्या कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये दोनों बराबर होने चाहिए. तो ऐसा क्या होगा, इफ यू डिवाइड a by b and then it has to be equivalent to b divided by which number, such that their ratios become equal, such that their divisions become equal. Do you understand? That is what you call as this x. That is what you call as mean. That is what you call as third proportional. Do you understand? कैसे निकालेंगे इसको, तो x किसके बराबर आएगा, बड़ा इजी है. ये देखिए, ये यहां चला गया तो कितना आ गया, b स्क्वायर. राइट, सो x विल बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करें ना इसको. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आपके लिए दिखा रहा हूं, ax इज इक्वल टू b स्क्वायर, और यू कैन से x इज इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइडेड बाई
A. All right, so this is your third proportional. Is it clear? What does this mean? This means that अगर आपको ऐसे दो नंबर दिए हैं A and B and उसका थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा गया है तो आपको क्या करना है, आपको जो सेकंड नंबर है उसका स्क्वायर करके डिवाइड कीजिए उसके फर्स्ट नंबर से. You will get the quantity which if A divided by B, if two numbers divided by each other, A by B will be always equivalent to B divided by that number. इनका रेशियो हमेशा सेम आएगा. यू कैन टेक ऑल द एग्जांपल्स, आई विल शो द क्वेश्चंस ऑन दैट, सो डोंट वरी अबाउट इट. बस कंसेप्ट पे ध्यान दे, ठीक है. ये कंसेप्ट्स क्या होते हैं. सो दिस इज अबाउट थर्ड प्रोपोर्शनल एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज फोर्थ प्रोपोर्शनल. ऑलराइट, उसमें आपके 3 नंबर दिए होंगे, आपको चौथा ढूंढना होगा, ठीक है. तो वो ऐसे होगा, जस्ट हैव अ लुक. फोर्थ प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं? बिटवीन द नंबर्स A, B एंड C. बिटवीन द नंबर्स A, B एंड C. तो किसको बोलते हैं? उसमें क्या बोलते हैं ना, इफ A इज टू B इज इक्वलेंट टू, अब यहां पे थर्ड नंबर आ गया C, दिस इज ऑल्सो नोन टू यू, is equivalent to some number x. This x is called fourth proportional. If this becomes equivalent to this x will be called as fourth proportional. Do you understand? What does this mean? This means A divided by B is equivalent to C divided by x. Right? Can't you find out this x? Very easy. Right? आप घर से भी खुद से बिना मेरे क्वेश्चन भी दिखाए अभी, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट इस वीडियो में हम वो कवर कर लेंगे. तो अभी ना थर्ड लेक्चर से बिल्कुल वर्ड प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स पे ध्यान देंगे, ठीक है. तो यहाँ तक मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया. तो जो भी बेसिक्स बताना था, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड आंसर यू दैट. ओके, तो बताइए एक्स किसके बराबर होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना आ गया? ax इज इक्वलेंट टू bc, या b इंटू सी लिख लीजिए आप. तो x किसके बराबर आएगा? b इंटू सी डिवाइडेड बाई a. इसका मतलब क्या हुआ? वो जो नंबर आप निकालना चाहते थे, सच दैट इफ यू विल डिवाइड c by that number will give you exact ratio as that of a by b. All right, that number is given by multiplying the second one with the third one and divided by the first one. Do you understand? We will take up so many questions on this one, so you don't have to worry about. But before leaving, I just want one question that you need to solve, right? And you can pause this before I will show this. You can pause off the video and try it out yourself. ठीक है, यहाँ पे चलते हैं. Is it clear? This is about fourth proportion. और third proportional किसके बराबर था हमारा? Third proportionality किसके बराबर थी? वो था, if you have to find out x was equivalent to the second number square divided by a. So these three. This is one. This is first. And where is that? These three. Remember this one? इस पे डायरेक्ट कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं. भाई आप कितने भी अच्छे हो, अगर आपको पता ना हो इनका मीनिंग क्या है, तो आप कितने भी अच्छे हो, आप बना नहीं सकते थे इस क्वेश्चंस को. इसीलिए ये दिखाना बहुत जरूरी था. इज इट क्लियर? चलते हैं आगे. The question to you is given like this. A is to B is given as 2 is to 3. Alright, A is to B is given as 2 is to 3, and also B is to C is been given to you. B is to C is given to you as, alright, that is 3 is to 7. Is it clear? What you have to find out? You have to find out A plus B is to, alright, A is to B plus B plus C is to C plus A. ये आपको फाइंड आउट करना है. That's fine ना? I think this is very easy. अब ये फाइंड करने के लिए आपको हर किसी की अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस पता चलनी चाहिए, ठीक है. आई टोल्ड यू दिस इज अ कंपैरिजन. इट मींस दैट मैं ना एक ही चीज में तीनों को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, लेकिन रिलेशन तीनों के बारे में एक साथ नहीं दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है. ए बी की रिलेशन और बी सी की, तो मुझे सबकी रिलेशन एक साथ चाहिए. ए बी और सी की रिलेशन एक साथ. तो कैसे करेंगे? जल्दी देख लेते. यहाँ पे ए बना दिया, यहाँ पे बी बना दिया, यहाँ पे सी बना दिया. ये रेशियो है ना इनके बीच में, ठीक है, रेशियो है इनके बीच में. तो कितना दिया है इसके बीच में? 2:3 दिया है. इसके बीच में कितना दिया था? 3:7 दिया था, ठीक है. अब यहाँ पे तो देखने की भी जरूरत नहीं है, इसके बीच में रेशियो बन गया 2:3:7. डू यू अंडरस्टैंड? 2:3:7, क्योंकि बी ये तो पहले से ही कॉमन है. जब बी 3 है तब ए 2 है, ये सी कितने हैं? 7 है. अगर वैसे भी नहीं देख लीजिए, यहाँ पे मैंने 3 डाल दिया, यहाँ पे भी 3 डाल दिया, ये 6 बन गया, ये कितना बन गया? 9 बन गया, और ये कितना बन गया? 21 बन गया. 3 देखिए, 3 से निकाल दीजिए, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 7 आ गया, वापस आ गया ना. तो A is to B is to C कितना आ गया आपका? 2:3:7. जैसे दिखाया वैसे करें, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ. 2:3:7.
इट मीन्स ए के पार्ट कितने 2, बी के पार्ट कितने 3, सी के पार्ट कितने 7। अब आपको निकालना क्या है, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी के पार्ट कितने हो गए 2 + 3 दैट इज 5। बताइए बी प्लस सी के पार्ट कितने हो गए 3 + 7, यहां पे देखो 3 + 7 कितने आ गए 10, और सी प्लस ए के पार्ट कितने आ गए 2 + 7 दैट इज 9। इज इट क्लियर? डन। इज इट फाइन और नॉट? ठीक है, एक और चीज लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज डन। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। आई एम जस्ट ट्राइंग टू होन द स्किल्स, इसीलिए थोड़ा ज्यादा दिखा रहा हूं। अब मुझे क्या दिया गया ना, a is to b 1/4, यहां पे दिया हुआ है 1/2, इसको 1/2 मान ले, इसको 1/4 मानते हैं, और b और c के बीच में जो रिलेशन दी हुई है दैट इज एक्चुअली 5:7। ठीक है, यहां पे दिया है 5:7। आपको निकालना है a is to b is to c, a is to b is to c निकालना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। कैसे करेंगे? सबसे पहले आई सेड दैट सबसे पहला जो इनिशियल स्टेप होता है दैट इज दैट डोंट पुट इट इन दिस फॉर्म, ट्राई टू जस्ट पुट इट इन अ नॉर्मलाइज फॉर्म। तो आप देखिए एलसीएम कितना है 4 अगर है तो 4 इसको भी मल्टीप्लाई करो, 4 इससे भी मल्टीप्लाई करो। डू यू अंडरस्टैंड? मतलब वही है, देखो दोनों साइड से, इसीलिए मैं ये वर्ड यूज करता हूं। अदरवाइज आई विल सिंपली से दैट अब जो 4 एलसीएम आ गया तो बताइए इसको जब 2 से करेंगे यहाँ पे 2 आ जाए। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये मतलब यही है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया ये 4 से मल्टीप्लाई करने का मकसद यही है दैट वंस यू मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर it does not change, the proportionality does not, the ratios does not change। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 2s और ये कितना आ गया, ये आपका 1 आ गया। ठीक है, तो a और b के बीच में जो रिलेशन दी थी कितनी दी थी 2:1 दी थी, और b और c के बीच में रिलेशन कितना दिया था, वो 5:7 दिया है। तो यहां पे भी आप 1 लिख लीजिए, इसकी विसिनिटी में यहां पे 5 लिख लीजिए, ये आपका 10 आ गया, ये आपका कितना आ गया 5 आ गया, और ये आपका 7 आ गया, ये आपका रिलेशन निकल गया a is to b is to c। अब इस क्वेश्चन दिखाने का मकसद एक ही है कि मैं क्या करता हूं ना, इसको हमेशा जरूरी नहीं है ऐसे करेंगे आप, ये देख लीजिए यहां पे देखते हैं, ये हो गया। चले लास्ट आई विल नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम ऑफ योर्स। तो यहां पे कितना था 1/2 था, और ये कितना था 1/, ठीक है। इसको क्या करते हैं ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, देखो इसको इधर मार दो, इसको इधर मार दो, कितना आ गया 4, और यहाँ कितना आ गया 2 2 1s are 2 2s are, तो रिलेशन कितनी आ गई 2:1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी यही होता है, ये बस मैं अंडरस्टैंड करवा रहा था, इधर एलसीएम ले लो और उसको मल्टीप्लाई करो, सो इट विल बी वेरी इजी। अब जब बहुत सारे नंबर होते हैं ना तो उसको वही कंसेप्ट यूज करते हैं, अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। आई थिंक दिस इज too much for you, right? That's enough for you. If you like this video, please give your feedback. Thank you very much, right? Allah Hafiz, take care. Khuda Hafiz.